Good morning, students. Our today topic is enthalpy and heat capacity. So our first topic is enthalpy. Enthalpy is denoted by the symbol capital H. It is defined as the total heat content of the system. Enthalpy is equal to the sum of internal energy and pressure volume work. Mathematically, enthalpy is equal to U plus PV, where U represent the internal energy, P pressure and V volume. Is it clear? Enthalpy is a form of heat absorbed or evolved by the system, where enthalpy is represented by the term capital H, U internal energy, P pressure and V volume. So enthalpy is the sum of internal energy and pressure volume work done. And change in enthalpy is a heat evolved or absorbed by the system at constant pressure. If you remember, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में स्टडी किया था एंड वी स्टडी दैट इंटरनल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, जब हम हीट को स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज equal to internal energy change, and the amount of heat evolved or absorbed at constant pressure, that is equal to enthalpy change. Is it clear? And for exothermic reaction when system loss energy to surrounding, for that enthalpy change as well as heat evolved or absorbed at constant pressure both are negative. And for endothermic system when system absorb energy from the surrounding, then enthalpy change and heat evolved or absorbed both are positive. Is it clear? And from first law of thermodynamics we know that Q is equal to delta U plus P delta V. So at constant pressure this heat evolved or absorbed is represented by QP, and we know that at constant pressure this heat is equal to enthalpy change. So we write it as delta H is equal to delta U plus P delta V. So what is relation between enthalpy change and internal energy change? It become delta H is equal to delta U plus P delta V. Is it clear? Now again the relation between delta H and delta U. Now let's take a general reaction, that A when converted into B. Let us consider that HA be the enthalpy of reactant A and HB be the enthalpy of product. So we can write enthalpy for reactant A is equal to internal energy of reactant plus P into volume of reactant A. ठीक है, and enthalpy for product it is HB is equal to UB plus PVB. ठीक है, where P remain constant, pressure constant है, constant pressure पे ही हम enthalpy change consider करते हैं. So for change in enthalpy it is equal to enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Value put करेंगे, so delta H become equal to internal energy change for product minus reactant, that is delta U, and pressure constant है तो VB minus VA, volume of product minus volume of reactant, it become delta V. ठीक है, that is HB minus HA. So enthalpy change is equal to internal energy change plus pressure into volume change. And for constant temperature and pressure, let's using ideal gas equation. According to ideal gas equation we know that PV is equal to nRT. So for reactant A, PVA is equal to NaRT. constant pressure है, pressure constant है, तो जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे वॉल्यूम के corresponding number of moles चेंज होंगे. And for product B the equation become P volume of product B is equal to NBRT. Is it clear? So at constant temperature and pressure their difference become PVB minus PVA. pressure तो constant है, ठीक है, तो यहाँ पे so their difference become is equal to NBRT minus NaRT. That is according to ideal gas equation. So R and T they are constant quantity, constant है तो इसको हम common ले लेंगे. So number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, it is equal to change in number of moles. और ये ध्यान रखना है जो ये change in moles है
ये हमने लिया फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है दे रिप्रेजेंट ओनली फॉर गैसेस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अगर हमारे न्यूमेरिकल में कहीं पे भी सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स यूज हुए इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, कहीं पे भी सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स यूज हुए हैं तो वहां पे n की वैल्यू फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इट इज टेकन एज 0. ठीक है, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ही रिप्रेजेंट करेंगे. दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स. इज इट क्लियर? And when we put the value of P delta V in this equation, so delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. And we know that delta H is heat evolved at constant pressure and delta U represent the heat evolved at constant volume plus delta Ng RT. Okay. So this is relationship between enthalpy change and internal energy change, and as well as heat evolved or absorbed at constant pressure and at constant volume. Is it clear? Now next the condition under which enthalpy change become equal to internal energy change or heat evolved or absorbed at constant pressure become equal to constant volume. Is it clear? So किस दो कंडीशन में इक्वल होगा? अब हमें पता है इनके बीच में रिलेशन क्या है. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT. ठीक है, और डेल्टा H को हम QP से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा U इज रिप्रेजेंटेड बाय QV. तो अब किस कंडीशन में ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी? आइदर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट पे चेंज इन वॉल्यूम बिकम 0, या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. ठीक है, तो जब ये डेल्टा वाली डेल्टा V और डेल्टा N की वैल्यू 0 होगी, देन डेल्टा H बिकम इक्वल टू डेल्टा U. Is it clear? So the first condition, we know that solid and liquid do not show significant change in the volume when heated. So if we take solid and liquid particles in the reaction, like for this reaction, if A moles of solid particles react with B mole, B आपका liquid है and converted into C. ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स कहीं पे भी यूज नहीं हुए, सारे ही सॉलिड और लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा एन बिकम इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा एन हियर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. और वी कैन से दैट सॉलिड और लिक्विड में कोई भी पर्टिकुलर चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में, तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू भी 0 है, डेल्टा वी इज ऑल्सो 0. So when the reaction involve only solid or liquid or solution but no gaseous reactant or product, for this condition delta V or delta N become equal to 0. For that enthalpy change become equal to internal energy change. Second, when reaction is carried out in a closed vessel, so that volume remain constant. अगर closed vessel है तो जो initial volume था वही final volume रहेगा. So delta V become 0, delta V 0 है तो delta H is equal to delta U. When the reaction involve gaseous reactant and product but their number of moles are equal. ठीक है, अब अगर गैस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हुआ है बट नंबर ऑफ मोल इक्वल है, लाइक फॉर दिस इक्वेशन व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HCl. इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, एक हाइड्रोजन का मोल एंड 1 फॉर क्लोरीन गैस, तो टोटल मोल 2, एंड मोल्स फॉर प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ HCl आर फॉर्म्ड, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी 2 है. तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट, दैट बिकम 0 बिकॉज बोथ आर इक्वल. अगर ये क्वांटिटी 0 आ गई, सो वी कैन से दैट डेल्टा एच बिकम इक्वल टू डेल्टा यू और QP इज इक्वल टू QV. ठीक है, सो व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल, और व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली सॉलिड और लिक्विड, और व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बट देयर नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, दिस कंडीशन एंथैल्पी चेंज बिकम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज. आई होप यू क्लियर द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज. Now our next topic is heat capacity. Now what is heat capacity? Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of system by 1 degree Celsius temperature. ठीक है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नेम्ड एज हीट कैपेसिटी, एंड हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल C.
ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, हेयर C रिप्रेजेंट हीट कैपेसिटी, Q इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर हमें 1 डिग्री राइज करना है तो उसके लिए हम कितना हीट दे रहे हैं, दैट इज Q, एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर. सो इफ Q calorie is the heat absorbed by the mass m and the temperature rises from T1 to T2, then heat capacity C is written by Q divided by T2 minus T1. ठीक है, Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी अगर हमें पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज करना है. सो हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय C is equal to Q by delta T. Delta T represent the difference in temperature. एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर पर्टिकुलर राइज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज सिंपल हीट कैपेसिटी. बट अगर हम सिस्टम का जो अमाउंट है वो फिक्स कर दे, ठीक है, अगर हम सिस्टम का अमाउंट फिक्स कर दे कि हमें अब 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट इज नेम्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मास सफिक्स नहीं था हीट कैपेसिटी में, बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सिस्टम इज फिक्स, दैट इज यूनिट मास. यूनिट मास मतलब 1 ग्राम. सो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड by unit mass to raise the temperature of system by 1 degree Celsius, and the SI unit of is it clear, and it is represented by Q is equal to C into delta T into M. ठीक है, पर ग्राम टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो इसको हम लिखेंगे Q बाय M इंटू डेल्टा T. तो यहाँ से कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई, M into C into delta T, where C represent the heat capacity, delta T change in temperature, M mass of system. Molar heat capacity. Now the heat capacity is defined as the amount of heat required by unit mole to raise the temperature of system. अब 1 मोल ऑफ सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, एंड मोलर हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय Cm. अब पर मोल के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे C बाय N, वेयर N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर है ये. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी अब लाइक एंथैल्पी और एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, हम हीट कैलकुलेट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी भी 2 टाइप की होगी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius at constant volume. अब हमें पता है C की वैल्यू क्या है, C is equal to Q by delta T. ठीक है, अब अगर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिक्वायर्ड है तो जो हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड होगी दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड वी नो दैट हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी चेंज. स्मॉल चेंज को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टोटल अगर लार्ज चेंज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म डेल्टा. वैसे हम विदाउट डिफरेंस D और डेल्टा दोनों को यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल D रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज एंड डेल्टा रिप्रेजेंट द लार्ज चेंज. Is it clear? So heat capacity at constant volume, it is defined as a rate of change of internal energy change with temperature at constant volume. And heat capacity at constant pressure, heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of system by 1 degree Celsius temperature at constant pressure. अब जो amount of heat required है that is at constant pressure, and we know that at constant pressure the amount of heat required is equal to enthalpy change. So we can say that heat capacity at constant pressure is defined as the rate of change of enthalpy. Rate of change of enthalpy with temperature at constant pressure. At constant volume it is represented by Cv, and at constant pressure
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म Cp. ठीक है, Cv इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज with respect to temperature, and heat capacity at constant pressure is represented by enthalpy change with respect to temperature. Is it clear? Now what is the relation between Cp and Cv? Now if the volume of the system is kept constant, the heat is added to system, then no work is done by the system. अब Cp और Cv हम कैलकुलेट करते हैं heat required at constant pressure and constant वॉल्यूम. तो अगर हमारा सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है डेट मीन्स नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो उस केस में जो भी हम हीट ऐड करेंगे, दैट हीट इज डायरेक्टली एडेड इनटू द सिस्टम एंड कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी. बट or we can say that the heat absorbed by the system is used up completely to increase the internal energy of the system. But if at constant pressure, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है बट कांस्टेंट प्रेशर पे सम वर्क हैज टू बी डन बाय द सिस्टम, कुछ ना कुछ वर्क तो डन होगा सिस्टम में. तो उस केस में द एनर्जी सप्लाइड इज समहाउ यूज्ड इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड द लेफ्ट ओवर इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो अमाउंट हमने एनर्जी की सप्लाई की, तो वो अमाउंट यूज हुई है वॉल्यूम को इंक्रीज करने में. तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेट मीन्स उसमें वर्क डन हुआ. तो उस केस में हमें जो एंथैल्पी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर is always more than the energy required to raise the temperature at constant volume. ठीक है, heat capacity at constant pressure is always greater than constant volume. रीजन क्लियर है? बिकॉज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन, बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे सिस्टम में, तो उस केस में जो सिस्टम की हीट है वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी टू इंक्रीज द वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ डेट मीन्स वो वर्क डन करने में कुछ ना कुछ हीट यूज होगी. तो हमें एंथैल्पी चेंज करने के लिए फर्दर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. बिकॉज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर work of expansion is also done by the system in addition to increase in internal energy. ठीक है, तो at constant pressure we always required extra amount of energy. So at constant pressure we always required some extra heat for doing work of expansion. तो Cp is always greater than Cv, and we know that Cv is equal to Qv divided by delta T. तो यहाँ से एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ये लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी. और क्यू वी किसके इक्वल है? डेल्टा यू के. तो ये वाली जो टर्म है डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डॉट डेल्टा टी. एंड एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज. तो अगर सी पी की वैल्यू ज्यादा है सी वी से, तो सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल आ गया? ये अगर मैं यहाँ से करके दिखाऊँ, सी पी माइनस सी पी डेट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू. और ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो डेट व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, डेट इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डेट इज डेल्टा एन आर टी. ठीक है, और हमें सी पी और सी वी में इसको कन्वर्ट करना है. Now differentiate this equation with respect to temperature. या तो हम इस पूरी इक्वेशन को with respect to temperature डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ से ये डिफ्रेंशिएट, अब जब टेम्परेचर को with respect to temperature डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt by dt, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अब डेल्टा h by dt किसके इक्वल है? डेट इज cv cp डेल्टा u by डेल्टा t, डेट इज cv प्लस डेल्टा ngrt. dt बाई dt तो कट ही हो गया, डेल्टा एन आर. तो यहाँ से Cp माइनस सी वी डेट इज इक्वल टू डेल्टा एन आर. इज इट क्लियर? एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एन को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर.
So the relationship between heat capacity at constant pressure and constant volume is Cp minus Cv is equal to R. ठीक है, या तो आप इस मेथड से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम. डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा टी तो कट ही हो जाएगा, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. सिंपल रिलेशन है, डायरेक्ट जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है, वैल्यू पुट करके वहां से डेल्टा टी कट हो जाएगा, तो रिलेशन डायरेक्ट ही आएगा. इज इट क्लियर? I hope you cleared the enthalpy and heat capacity and the type of heat capacity. Now let's discuss some numerical based upon enthalpy change, internal energy change and the heat capacity. So the first numerical is the reaction of cyanamide with dioxygen was carried out in a Bohm calorimeter. अब ये ध्यान रखना, जब भी आपको बोम कैलोरीमीटर की टर्म गिवन हो, बोम कैलोरीमीटर में जो हम हीट कैलकुलेट करते हैं डेट इज ऑलवेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वहां पे आपको हमेशा इंटरनल एनर्जी ही गिवन होगी. इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी माइनस 742.7 एट 298 केल्विन. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वैल्यू और इक्वेशन आपको गिवन है साइनामाइड प्लस 3/2 O2 इस फॉर्म N2 यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में होगा. ठीक है, अब ये देखो नंबर गैस के जब भी आपको इक्वेशन गिवन होगी ना, इक्वेशन से वी ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. नंबर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो गैस के प्रोडक्ट कितने हैं, नाइट्रोजन गैस है एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वाटर लिक्विड में, वाटर को हम काउंट नहीं करेंगे, माइनस साइनामाइड सॉलिड में, उसको काउंट नहीं करेंगे. ऑक्सीजन आपका गैस है और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 3/2, तो 2 माइनस 3/2 इट बिकम हाफ मोल. ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू in terms of number of mole that is delta Ng RT. डेल्टा U की वैल्यू आपको गिवन है, जस्ट डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है आपको. डेल्टा Ng हाफ, R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, R is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन. और डेल्टा यू की जो यूनिट है डेट इज माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल. ठीक है, पर किलो जूल पर मोल, सॉरी यहाँ पे ये इसका इन्वर्स नहीं आएगा, किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो अब ये देखो आपकी यहाँ पे बस देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही है, सारी वैल्यू आपको गिवन थी. एंथैल्पी चेंज गिवन था, डेल्टा एनजी हमने इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया, टेम्परेचर गिवन था, आर की वैल्यू आपको पता है. जस्ट अब यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट क्या है, जो यूनिट्स है, यूनिट पे आपको फोकस करना, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए. अब डेल्टा यू की यूनिट है आपकी किलो जूल और आर की जो यूनिट है डेट इज जूल पर केल्विन पर मोल. तो अगर एक एनर्जी आपकी किलो जूल में है तो दूसरी भी आपकी किलो जूल में ही होगी. ठीक है, या तो आप इसको फर्दर किलो जूल में कन्वर्ट करो या डेल्टा या जो इंटरनल एनर्जी चेंज है उसको जूल में कन्वर्ट करो. इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻⁻3. ठीक है, तो यहाँ से जस्ट इसको सोल्व करेंगे. आफ्टर सोल्विंग equation the value of enthalpy change become minus 741.5 kilojoule per mole. Is it clear? Now next is calculate the number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium. Now mass of aluminium is 60 gram from 35 degree Celsius to 55 डिग्री सेल्सियस. मतलब T2 की वैल्यू है 55, T1 है 35, तो डेल्टा T कितना आ गया यहाँ से, डेल्टा T इज T2 माइनस T1. 55 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, इट बिकम 20 डिग्री सेल्सियस. मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है 24 जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, मीन्स क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको.
सो मोलर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, डेट इज सी बाई एन, सी की वैल्यू क्यू बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल आ गई, मोलर हीट कैपेसिटी इंटू एन इंटू डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी आपको गिवन है, डेट इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स, आपको मास गिवन है, मास से वी कैन इजिली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेट इज 20। ठीक है, केल्विन, यहाँ पे हम केल्विन ही ले लेंगे, डिग्री सेल्सियस है, माइनस किया है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड हम प्लस 273 करेंगे तो वो तो कैंसल आउट ही हो जाएगा ना। तो जब भी हमें डेल्टा टी की वैल्यू लेनी है, डेल्टा टी में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन स्केल। तो जस्ट इसको सोल्व करेंगे, बाय सोल्विंग वी कैन इजिली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्यू। अब यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी आपको जूल में गिवन है, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी क्यू की, डेट इज इन जूल। ठीक है, इसको सोल्व करके जो यहाँ से आपका क्यू की वैल्यू आई, डेट इज इन जूल। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड दिस वैल्यू बाय 10⁻³ 1000 से डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम 1.066 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस इज 1.066 किलो जूल। इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी। बस यहाँ पे जो आपको मेन थिंग आपको ध्यान रखनी है, डेट इज देयर यूनिट। ठीक है, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, हर एक क्वांटिटी की यूनिट अगर आप साथ साथ मेंशन करते हो तो न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा आपका। इज इट क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।